Hello, sir. Hello, sir. नमस्कार. बंद करो वो डब्बा. Yes, I can hear. You can hear my voice? Okay. So just 1 minute. I want to join from computer classes because while it gets any problems like the so but I can't start my video. No, I can't. So in 10 minutes, I'll be joining from another device. Sir, it is mixed. Sir, I am saying that first standard is also joining. Sir, I have first standard child. Sir, Pritish, my brother. Pritish. Sir, Pritish is in first standard. So he is not registered. Hello. Hi, Karan. Hi. He was saying that हार्दिक सर ने मेरे को वो शेडिंग सिखाई थी हार्दिक सर ड्राइंग के हार्दिक सर आए थे Jagdish sir was has taken the art period. Last time he have some problems, so he remember now. देखो आने इधर आ जा चल आने की कोशिश सर मैं थर्ड ब्रदर सर here is my third brother a second brother one on KG2 इधर आओ आप इधर आओ अंदर बैठो मैं मंकी जैसे करता हूँ एकदम अभी रुक जा मेरे को कंप्यूटर ऑन कर अपना अरे मनु केक नहीं खाते इतना ये मेरे टूटा हो गया बढ़ इधर बैठ और केक खा और फिर तो तेरे को भी लिखना है ना तेरी भी क्लास है मेरे का बोल देगा मेरे बैठ के बाद ज्वाइन हो गया मेरे को पापा करके अब वो मुझे नहीं पता फर्स्ट चैनल ये क्या है और मम्मी के मोबाइल में मैसेज आया है मैं तो जान नहीं हूँ भाई तो मम्मी को क्या हाँ अम्मी चाहिए sir, I know how to use. Okay.
So what did you say? Could you repeat again? Like you said something right now, right? So could you repeat again? I could. Yeah. I can hear you now. What did you say before? I couldn't hear you that time. Okay. Okay. So that's for kids, students, or that's for me? The question. It's for us. Okay. Yeah, we have heard about the term self care before also. It's all about how we take care of ourselves so that we don't, like, when we are doing a lot of things for others, we take care of ourselves so that we don't, diminish by taking care of other things. So it's probably like evaluation or, refreshing ourselves or knowing about ourselves. That's what I think self care is. And I feel like to know more about it is also good. To have more knowledge about it is also good. So that's why I'm here. Okay, thank you. Dharya, you can keep your camera on. Vivan, would you like to share what makes you attend today's session? Yeah, so I wanted to attend this session because I wanted to know more about self care and its uses and what it actually means. Okay, thank you. Dharya, what about you? Sir, I don't hear the question because now when I was mute, when you were saying questions, the voice were coming. When you were on mute, my voice was not coming. Okay, so I that can't hear your voice. Your voice was coming, but I can't hear your voice. okay. What about now? Now, can you hear me? Okay, great. So my question was, what makes you attend today's session? Why do you want to attend today's session? Sir, I was thinking that we will take some general knowledge and games. So I said that I want to join this meeting and see Okay, what game they are taking and what knowledge. all right. What about Suhani?
Suhani, is your audio connected? All right, fine. So, if you break down the words self care, the phrase self care, what are the two words that you get? Self and care. Right. So, the first part, self, what is that all about? When you think of yourself or when you hear the word self, what comes to your mind? Self is about me and myself. So yeah. Okay. What else comes to your mind? It can even be how you think about the word self. So, whatever comes to your mind when you hear the word self. Yeah, did you get some time to think about it? And what about the word care? What does that bring to your mind? Sir, I think that self care means to do good things for myself. Okay.
So, can you give any examples? What do you mean good doing good things for yourself? Such as I eat healthy so that I can remain healthy. Hmm. So I avoid any oily food or junk food. Okay. So that is how I'm taking care of my health. Doing a nice thing for myself. That is the physical health. All right. But do you always feel like eating healthy? Or do Self-care is healthy things more always like taste good? doing what you like to do. No, sometimes Come, I one minute. want I to think eat Vivan unhealthy is food too. answering. Yeah. Yes, Vivan. So self-care is more like you do what you want to do and not and take your own me time. Okay. Take your own me time and do what you want to do. So, what about things Has like Vivan introduced himself? Has Vivan introduced himself? no, we are actually in that process. We are getting to know each other through this conversation. We were actually waiting for Mona auntie to join, but I think there is some technical problem at her end. So while we get that sorted out, we'll try to explore this topic so that when she joins, she'll be able to jump into it. Okay, she is joining now. So yeah, doing something good for yourself. Um, that is one way of looking at self care. But And doing then good for taking yourself may not be good for others. At times, doing good for your own self may not be doing good for others. okay. So, is it good to do something good for yourself and not good for others? I feel it's okay to do it once in a while as long as you enjoy doing it. Okay, that is one point of discussion. Okay, how does self care feel when you practice self care? When you do something You should which yeah, you think would be self care, how does it feel? when you practice self-care, you need to make sure you feel happy. And if you're not happy, then you're not really caring for yourself. Okay. Happiness can be something, can be a bit tricky, like if you say eat three ice creams in one day.
if you like ice creams, then you can be extremely Except happy. for, I feel a better word would be, I think a better word instead of using happiness might be enjoy. As long as you enjoy doing it, it's okay. Uh, that's self care. If you don't enjoy that, then that's not really self care. Okay. So this is one question. So if you are, suppose, say, involved in reading, or if you are doing a workout in the morning, getting up early in the morning and working out, exercising. Uh, I'm not talking about games, like just exercising. Would that be something that we enjoy? I want more answers, not just one person. Because the thing is, the more we discuss about this, the more interesting inputs we'll get, and we'll actually move forward. Okay, I think that seems sensible. So if she's okay with it, she can call me. I'll put it on speaker. Yeah, till then we can continue. Um, so if I'm working out, so automatically, is the sensation that my body receives, is it comfortable or is it painful? How is it? It's painful initially, but once you get used to it, we feel good. It depends. If you like to work out, then you'll feel good. If you don't really like to work out, it might be painful for you. And if you're not used to it, it might be painful. Okay, so what you're saying is, even if it feels painful, but you are enjoying it, so that kind of balances out. Yeah. All right. And when you say that you are enjoying it, when you say that you are, it makes you feel happy. Do you feel this happiness or enjoyment only in one place, or is it in on multiple levels? There can be many things you enjoy to do, or there can be only one thing. Now depends up to you. Okay. हेलो. हाँ. हाँ हाँ ठीक है. हाँ 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 हाँ. Hello. Okay, so I'll try to join you like this. Hold on. Or on mute. Okay. Let's see if this is doable. Yes, sir. So, what about Mona auntie? Can you see the screen of the laptop? Are you able to see the screen of the laptop? Yes, sir. No, no. On my video, are you able to see the screen?
Yes. Okay. Yes, I can see. I can see myself on your screen. Yes, Okay. I can see myself. Yes. Okay. Yes. Fine. Fine. अब कैसा करेंगे? So you are quite audible to everyone, so I don't think that should be a problem. Okay. Good. चलो. So should we start? Sure, sure. Fine. तो I think अभी तो थोड़े 15-20 मिनट we have lost few minutes. फिर भी मुझे ऐसे लगता है whatever हार्दिक sir has talked to you, बच्चे हैं ना बहुत सारे या पेरेंट्स ज्यादा है? बच्चे ज्यादा है. बच्चे ज्यादा है. Yes, yes. Okay, that is great. That is something great. Okay, so बच्चे लोग, let me introduce myself. मैं डॉक्टर मोहना कुलकर्णी. शायद आपने मुझे आपके स्कूल में कभी ना कभी देखा होगा. I come to your school quite frequently. और मुझे बच्चों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है. And I just love their company. और मुझे और ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है कि आपसे बात करने से मुझे भी बहुत सारा सीखने को मिलता है. So that's why I just love this interaction, you know. तो आप जैसे हार्दिक सर ने मुझे बताया कि आपका जो अभी एज ग्रुप, आपका ये जो ग्रुप है वो 9 to 14 ये आपका एज ग्रुप है, ऐसे मुझे हार्दिक सर ने बताया. और मैं ऐसे समझती हूँ कि ये ही बहुत ही बढ़िया उम्र है एंजॉय करने की और बहुत सारा सीखने की. तो सबसे पहले मुझे आप सब बताइए कि आप अभी बड़े होना चाहते हैं या छोटा ही रहना चाहते हैं? कैन यू आंसर? बड़ा होना चाहते हैं या छोटा रहना चाहते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से मैं चाहता हूँ मैम. बड़े होना चाहते हैं, is what they are saying. बड़ा होना चाहता हूँ. Okay, yes, that's great. That's great. Nice. तो बड़ा तो होना है और होना ही पड़ेगा क्योंकि आप अभी नीचे 9 से 8, 7, 6 ऐसा तो नहीं हो सकता. तो आपको बड़ा होना है, ये तो पक्का है. और ये जो बड़ा होना है तो इसका मतलब क्या है बड़ा होना माने? तो आपका आज ये पूरा वर्कशॉप का नाम जो हार्दिक सर ने दिया है सेल्फ केयर, तो हम उसी को सामने रख के हम सेल्फ केयर और बड़ा होना, इसका कोई इसमें कोई लिंक है क्या? Does it have any connection? बड़ा होना और सेल्फ केयर, इसमें कोई कनेक्शन है? I don't think so. नहीं, हाँ? I don't think so. कनेक्शन है और ये कनेक्शन ऐसा है कि बड़ा होना और सेल्फ केयर के बारे में जानकारी लेना, that means you are becoming responsible. आप जिम्मेदार हो रहे हो, isn't it? Right? So that is the whole meaning of बड़ा होना, be self care और responsibility लेना. ये तीनों चारों words जो है ना उसका अर्थ एक ही है. That is becoming responsible. So, really, do you want to be a responsible person? Okay, तो अगर ये responsibility लेना है, responsible person बनना है, तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? Anybody has any idea? क्या करना चाहिए responsible बनने के लिए? हाँ? क्या करना है? Anybody? बड़ा होना माने क्या? सेल्फ केयर माने क्या? रिस्पॉन्सिबल होना माने क्या? Can you all put it in one word? In one sentence? पापा की बात हाँ? क्या कहा? मम्मी पापा की बात मानना.
मम्मी पापा की बात मानना। ओहो, मम्मी पापा की बात मानना। ओ यस, वो तो अच्छी बात है, बिल्कुल पक्का। लेकिन पूरे 24 घंटे 24/7 365 डेज मम्मी पापा की बात मानेंगे आप? हाँ, पूरी देखो आप जो कह रहे हैं, हाँ मैम। उसके बारे में सोच के बोलना है। 24/7 365 डेज मम्मी पापा की बात नहीं मान सकते या मान सकते? हाँ, आपका नहीं विचार मान अच्छा सकते। है। बहुत आपने अच्छा कहा, मम्मी पापा की बात मानना चाहिए, सही बात है, जरूर है, मानना है, लेकिन नॉट 24/7 365 डेज एंड फुल लाइफ। क्योंकि जो वर्ड मैंने अभी कहा, रिस्पॉन्सिबल होना, इंडिपेंडेंट होना, तो ये आप पूरी लाइफ मम्मी पापा की बात मानते रहे तो अपने अपने दिमाग से कुछ करेंगे या नहीं? हाँ, अपना स्किल, अपनी हुनर, अपना इंटेलिजेंस अगर काम में लाना है तो 24/7 मम्मी पापा की बात नहीं मान सकती। इसका मतलब आप खुद को रिस्पॉन्सिबल होना है, राइट? तो आज हम फिर ये सीखने वाले हैं कि ये सेल्फ केयर, खुद की केयर लेके हमको इंडिपेंडेंट होना है, रिस्पॉन्सिबल होना है, राइट? तो आपकी ये जो पूरी एक्टिविटी है ना, ये नीवम स्कूल से शुरू होती है, isn't it? ये स्कूल आपके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो ये सबसे बात बताइए मुझे, ये स्कूल में आप जो पढ़ाई करते हो उसके बारे में आपका क्या विचार है? लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दैट। सेल्फ केयर, बड़ा होना और ये पढ़ाई का क्या मतलब, क्यों करना है पढ़ाई? हाँ, थोड़े बड़े बच्चे भी हैं, 13-14 साल के, वो बता सकते हैं पढ़ाई का इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में। कोई बताएगा? Why learn? नहीं? ओके, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने अभी ये जो वर्ड इस्तेमाल किया, लर्न, हाँ, और स्कूल में बहुत सारा काम क्या होता है? टीचिंग का। टीचिंग, आपके बहुत अच्छे अच्छे एक से एक बढ़िया टीचर आपके, राइट? और वो आपको बहुत अच्छा टीचिंग करते हैं, ओके? लेकिन उन्होंने अच्छा टीचिंग किया, लेकिन आपने लिया नहीं, आपने लर्न किया नहीं, तो क्या फायदा? समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये स्कूल में टीचिंग और लर्निंग, ये दो बातें होती है, हाँ? तो ये लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या टीचिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कोई बता सकता है? लर्निंग। लर्निंग, शाबाश। जिस किसी ने आंसर दिया है, मैं उसको बहुत अच्छा अप्रिशिएट करती हूँ, आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम। व्हाई? क्योंकि बहुत अच्छे से टीचर है, वो आपको जी जान से कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप अगर पढ़ ही नहीं रहे, आप ले ही नहीं रहे, तो वो टीचिंग का क्या फायदा है? हाँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि सामने टीचर नहीं रहता है, फिर भी कुछ चीजें हमको सीखनी पड़ती है। We have to learn even if there is no teacher to teach us, isn't it? So सबसे सेल्फ केयर बड़ा होने में एक पहली और बेसिक चीज ध्यान में रखो, you have to be ready for learning, right? So be open, be willing, be motivated for learning. सीखना, बहुत सारा सीखना, बहुत सारी बातें सीखना,
ठीक है, तो ये लर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हमेशा दिमाग में रखिए, क्योंकि लर्निंग से ही हम आगे बढ़ेंगे। टीचिंग से फायदा होगा, टीचिंग से मदद होगी, टीचिंग जरूरी है। अच्छा टीचर इज, यू आर फॉर्चुनेट टू हैव अ गुड टीचर, लेकिन इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है लर्निंग। ओके, तो अगर बड़ा होना है, खुद की केयर लेना है, खुद का संभलना है आगे चल के भी, तो बी वेरी ओपन एंड विलिंग फॉर लर्निंग। ठीक है, इसमें आपको किसी को कोई बोलना है, किसी को मन में कुछ डाउट है, अगर क्लियर हो गया तो हम अगले पॉइंट पर जाएंगे। एनीबडी हैज एनी क्वेरी? कुछ बोलना है? ओके, सो आई टेक इट कि आप सबको लर्निंग का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया, राइट? सो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी ये 2020 जब से शुरू हुआ है ना, नया सेंचुरी, तब से ऐसे बोल रहे हैं इट इज लर्निंग टू लर्न। ये ग्लोबलाइज्ड ऐसे सेंटेंस हो गया है, लर्निंग टू लर्न। मैं कैसे सीखूं, ये मुझे सीखना चाहिए। सो बी रेडी फॉर लर्निंग डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, फाइन, ओके, तो ये एक अच्छी बात हो गई। नाउ और आगे अपन जाएंगे सेल्फ केयर में और बड़ा होने में। और एक पॉइंट क्या आता है, अपनी खुद की सेल्फ की हमको जानकारी होना। हाउ एम आई, मैं कैसे हूँ, मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या अच्छा है, राइट? तो ये मैं बहुत सारे बच्चों को बताती हूँ कि आपका जब बर्थडे रहता है ना, बर्थडे अगर नहीं भी है बर्थडे तो छोड़ दो, कोई भी दिन, अभी 1 जनवरी आएगा, नया साल शुरू हो जाएगा, उस दिन ना आप एक पेपर पर अपने पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखना है। और दूसरे उसके साइड में अपनी थोड़ी सी जो वीकनेसेस है, मैं नहीं कर सकती, मुझे ये सीखना है, ये मुझे नहीं आता, ऐसे जो चीजें हैं वो एक दूसरे पन्ने पर लिखना है। एंड आपको खुद को समझ में आएगा कि अरे भाई, आपको ऐसे लगा कि नहीं नहीं, मेरे को साइकिलिंग अभी तक नहीं आ रहा है, मैं अभी तक साइकिल नहीं चला पा रही, तो that may be you may feel it is your weakness कि साइकिल तो कम से कम आनी चाहिए, so that you write down on in your weakness। और अगले बर्थडे को या अगले 1 जनवरी को जब आप वो कागज लेके बैठेंगी और चेक करेंगी, तो आपको लगेगा हाँ, लास्ट टाइम मैंने लिखा था 1 जनवरी को मेरे को साइकिलिंग नहीं आती, मुझे साइकिल सीखना है। एंड नेक्स्ट 1 जनवरी को ऐसे आपको पता चलेगा कि यस, ये जो मेरा वीकनेस था, मेरी जो कमजोरी थी, whatever was lacking, मैंने 1 साल में वो कंप्लीट किया है। नाउ आई कैन साइकिल वेरी वेल, मुझे अभी अच्छी साइकिल चलाने आती है। इफ यू राइट डाउन कि नहीं, मेरा इंग्लिश लैंग्वेज या अच्छा मेरे से बात करना अच्छे तरह से होता नहीं है, सो आई हैव टू लर्न अच्छे से बात करना, अच्छा एक्सप्रेशन देना, लोगों को अच्छा लगे, ऐसी बात उनकी समझ में आए, ऐसी बातें करना मुझे सीखना चाहिए। So if that is your weakness, try to improve, और वो नेक्स्ट ईयर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। सपोज आप में कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि मुझे अच्छे फिजिकल फिटनेस है और मुझे जिम्नास्टिक्स में फलानी चीज करनी है, फलाना स्किल मुझे जिम्नास्टिक्स में करना है, तो ये आपका फिजिकल फिटनेस इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट का आपने कैसे इस्तेमाल किया,
उसका क्या फायदा हुआ, वो कहाँ काम में आया, ये आपको अगले 1 जनवरी को फिर से लिखना है, ठीक है। तो ये every year on every birthday or every 1st of January you can just make this checklist, इसको बोलते हैं checklist, कि हम खुद को चेक कर रहे हैं अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीकनेसेस के बारे में। और ये जब आप करते रहेंगे तब आपको पता चलेगा कि यस, एम आई टेकिंग गुड केयर ऑफ माई सेल्फ। सेल्फ केयर, ये अगर आपका टॉपिक है आज का, तो एम आई टेकिंग गुड केयर ऑफ माई सेल्फ। मेरे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, अगर आई कैन सिंग वेल, मेरा गला अच्छा है, मैं अच्छे से गा सकती हूँ, मुझे अच्छे सुर समझते हैं, तो एम आई इम्प्रूविंग ऑन माई सिंगिंग, एम आई इम्प्रूविंग ऑन माई म्यूजिकल प्रेजेंटेशन। तो ये अपने जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उसका मैंने किस प्रकार से उपयोग किया, हाउ आई हैव यूटिलाइज्ड इट, हाउ आई हैव प्रोग्रेस्ड इन इट, and how it has given me some satisfaction, some rewarding feeling. अभी आपके सर ने वो जो उनकी YouTube पर लिंक थी ना, उसमें बहुत सारे एंडोर्फिन, सेरोटोनिन वगैरह वगैरह बताया था, जो अपने को अच्छा फीलिंग देते हैं, नाइस फीलिंग देते हैं। तो ये जब भी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इस्तेमाल करेंगे और कुछ अच्छा करेंगे, तब ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स, आपके दिमाग में जो केमिकल्स है ना, वो आपको अच्छा फील करने में मदद करते हैं। और जब यू ओवरकम योर वीकनेस, आपके वीकनेस से आप बाहर आ गए, उस पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपने ढूंढ निकाला, और वो वीकनेस अपनी पर्सनालिटी से दूर किया, that also gives you a very positive message, और वो बड़ा होने में, अपनी पर्सनालिटी बनाने में बहुत ही इसेंशियल है, यूजफुल है। और अगर वो हो गया तो इसका मतलब यू आर टेकिंग योर ओन केयर। हाँ, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप खुद अपनी केयर ले रहे हैं, क्योंकि जैसे आप अभी 9 साल के हैं, 10 साल के हैं, तो अभी फिलहाल कुछ हद तक आपके पेरेंट्स आपकी केयर लेते हैं। आई नो इट इज रियली इसेंशियल, होना भी जरूरी है, लेकिन ये 24/7 365 डेज फुल लाइफ आपके मम्मी पापा आपकी केयर तो नहीं ले सकते, किसी की भी नहीं ले सकते। अभी मैं 65 साल की हो गई, अभी तो मेरे पापा है भी नहीं, मेरे केयर कौन लेगा? तो मेरे केयर मुझे खुद को लेनी है। तो ये सेल्फ केयर अगर हमको लेके आगे चलना है, तो उसमें मैंने जो बातें बताई अबाउट योर ओन सेल्फ, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एंड वीकनेसेस, एंड वर्किंग ऑन दोज पॉइंट्स, ठीक है। और ये जो वीकनेसेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो है, वो कभी कभी हम खुद को समझ में नहीं आते कि मेरे वीकनेसेस क्या है या मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। तो कभी आपके मम्मी डैडी, फ्रेंड्स, भाई बहन आपको शायद बता सकते हैं कि भाई हाँ, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट, आपका हैंडराइटिंग अच्छा है, आपका ड्राइंग अच्छा है, व्हाई डोंट यू डू समथिंग ऑन दैट। ये कोई आपको सजेशन भी दे सकता है, तो वेलकम इट, उसका स्वागत करो और वर्क ऑन इट। एनीथिंग, एनीबडी हैज अ क्वेश्चन ऑन दिस? किसी को इसके बारे में बोलना है? I would like to discuss on this topic. किसी को बोलना है तो जरूर बताइए। हाँ, anybody wants to share? Can you hear me? Okay. Can you all hear, Should I ma'am? go ahead? They can hear me? Yes, sir. Okay. Okay. Anybody has a question? हाँ? What is your question?
Okay, okay. That was yes for they can hear you and no questions. No questions. Okay, fine. Should I go ahead? Yeah. Yes, fine. Okay. So ये करने के बाद मैं फिर एक बार आपकी उस टॉपिक पर आऊंगी जो मुझे बहुत कभी कभी पेरेंट्स को बताना पड़ता है, या आपके साथ अगर अभी मम्मी डैडी आपके साथ है तो उनसे भी मैं कुछ शेयर करूंगी। और आपको भी मैं ये बताना चाहती हूँ सब बच्चों को कि जब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ अचीव करते हैं, सीखते हैं, तो बहुत सारी बात क्या होता है, हम किसी न किसी से अपनी कंपैरिजन करते हैं। हाँ, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं कि भाई उसका तो फर्स्ट आया, उसको 100 आउट ऑफ 100 मिल गए तो मुझे नहीं मिले। सो इट इज यू आर कंपेयरिंग सम पर्सन विथ योर ओन सेल्फ। हाँ, तो ये करना कभी कभी हम बहुत तकलीफदायक होता है। हम वी गेट हर्ट, वी फील बैड कि अगर कंपैरिजन हो जाती है तो अपने मन ही मन में अपने को दुख होता है। लेकिन क्या ये कंपैरिजन करना बहुत ही गलत बात है, बहुत ही खराब बात है? नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये कंपैरिजन आप सपोज ये एक गौरव नाम का लड़का है और एक रोहित नाम का लड़का है, और हम दिमाग में क्या लाते हैं, गौरव और रोहित के हम कंपैरिजन करते कि ये बहुत होशियार है और ये टफर है। हाँ, तो ऐसे तो नहीं होता ना, कोई हम 100% होशियार और कोई 100% डफर, ऐसे तो नहीं होता है। तो ये जो कंपैरिजन है वो हमको सही तरीके से इस्तेमाल करनी है। वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर हमको खराब लग रहा है कंपैरिजन से और उसमें से बाहर निकलना है, तो ये सेल्फ केयर कौन करेगा? हम खुद करेंगे। सेल्फ माने खुद, अपन, और केयरिंग अपनी खुद की। तो मुझे अगर किसी बात से हर्ट हो रही हूं, मैं खराब लग रहा है, आई एम फीलिंग बैड, आई एम फीलिंग सैड, तो ये मुझे उस पर कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये कंपैरिजन मैं अच्छी तरह से इस्तेमाल करूंगी। आई विल यूज इट इन अ प्रॉपर वे। तो क्या करूंगी मैं खुद को किसी व्यक्ति के साथ कंपेयर नहीं करूंगी। माने रोहित विल नॉट कंपेयर हिमसेल्फ विद गौरव। तो रोहित क्या करेगा? रोहित कंपैरिजन किस बात की करेगा? रोहित कंपैरिजन इस बात की करेगा कि गौरव को मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मिलते हैं। इसका मतलब वो जो भी मैथ्स के सम्स है वो सही तरीके से सॉल्व करता है। ठीक है, तो वो अगर मेरे सम्स सॉल्व करने में कोई तो गड़बड़ हो रही है, इसलिए मुझे 100 आउट ऑफ 100 नहीं मिल रहे, और गौरव जो सोचता है कि मैं रोहित से बिल्कुल टक्कर हूं क्योंकि मुझे मैथ्स में बहुत कम मार्क मिल गए, तो ये खुद को डफर क्यों समझना है? खुद को आप ऐसे सोच सकते हो कि रोहित जिस प्रकार से सम्स सॉल्व कर रहा है उसमें और मेरे सम सॉल्व करने में कुछ तो फर्क है। ठीक है, तो अगर मैं वो सम सॉल्व करने के स्टेप्स जो है, इफ आई चेक ऑन दैट, मेरी समझ में आ जाएगा कि यस, ये सम्स करते समय मेरी ये 2 स्टेप्स गलत हो गई, एंड दैट इज व्हाई मेरा आंसर करेक्ट नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ कंपैरिजन किस बात की हो गई? कंपैरिजन हो गई रोहित की सम्स के स्टेप्स में और गौरव के सम्स के स्टेप्स में। समझ में आया? या कंपैरिजन गौरव और रोहित में नहीं हुई। गौरव भी अच्छा लड़का है, रोहित भी अच्छा लड़का है, गौरव भी कुछ चीजें कर सकता है,
रोहित भी कुछ चीजें कर सकता है। अभी कंपैरिजन हमको अपने परफॉर्मेंस में करनी है, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति में नहीं करना है। सो इफ यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट टू डू सेल्फ डेवलपमेंट, बड़ा होना है, इम्प्रूव करना है, तो कंपैरिजन किस चीज की करना है? कंपैरिजन अपने परफॉर्मेंस की करो, किसी व्यक्ति के साथ, किसी पर्सनल इंडिविजुअल के साथ अपनी कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि वो कंपैरिजन करके हमको सिर्फ दुख होता है, वी फील बैड। और अगर आपने परफॉर्मेंस में कंपैरिजन करके कुछ सीख लिया, कुछ इंप्रूवमेंट किया, कुछ उसमें चेंजेस किए, तो उसमें से क्या मिलता है आपको? इंप्रूवमेंट। दैट इज हाउ यू सेल्फ केयर। इसका मतलब आप सब ने खुद की मदद की, खुद पर काम किया और खुद को बदलने की, इम्प्रूव करने की कोशिश की। सो डोंट रन अवे फ्रॉम कंपैरिजन। कंपैरिजन करना है, जरूर करना है, और उसमें से खुद को अच्छा बनाना भी है, लेकिन किसी इंडिविजुअल के साथ कंपैरिजन मत करो। जो परफॉर्मेंस में कमी है, जो परफॉर्मेंस हम अच्छा करना चाहते हैं, उसके बारे में कंपैरिजन करो। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा टेक्निक है जो आपको आगे चल के भी काम में आएगा। राइट? किसी को ऐसी एग्जाम्पल किसी के मन में आ रहा है? आप सब बच्चे यहाँ बैठे हैं, तो किसी ने कभी ना कभी किसी ने मन ही मन में कंपैरिजन की होंगी। कोई बता सकता है मुझे ऐसा क्या हुआ था, कब हुआ था? एनीबडी कैन शेयर? एनीबडी? Dhairya, Prathamesh, are you there? हाँ, कभी भी मन में कंपैरिजन आई नहीं? बताइए, किसी ने कभी किसी के साथ कंपैरिजन की नहीं? ऐसे नहीं हो सकता। ओके, सो ओके, अब क्या हो रहा है? अभी ये अपना ऑनलाइन डिस्कशन है ना, तो कभी कभी हम खुल के बात नहीं कर सकते। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन इमेजिन। लेकिन हम जब एक साथ एक ग्रुप में आमने सामने बैठते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बातें करते हैं। आई नो इट एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट आल्सो। तो ठीक है, कोई बात नहीं। इफ यू आर नॉट एबल टू शेयर इट नाउ, नो प्रॉब्लम। हम जब भी मिलेंगे डायरेक्ट, जब अपना ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, तो शायद अपन ज्यादा अच्छे से गप्पे लगाएंगे, ज्यादा अच्छे से खुल के बात करेंगे। ठीक है? एनीवे, शुड आई गो अहेड? Yes, और कुछ बताना है? हाँ? Yeah, I think we can go ahead. ओके, ठीक है। हाँ, अभी जैसे जैसे आप अगले बड़े क्लास में चले जाएंगे, बहुत 9 साल के जो बच्चे हैं वो तो ठीक है, अभी आप 3rd 4th स्टैंडर्ड में है। लेकिन जब आगे चल के आप बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हो, क्लासेस, ट्यूशंस, एग्जाम्स, सम एंट्रेंस एग्जाम्स, कुछ स्कॉलरशिप के एग्जाम्स वगैरह 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 जब आपके शुरू हो जाते हैं, तब है ना बहुत सारी टाइम आपको टेंशन आता है। हाँ, अरे बाप रे, टेंशन आ गया, टेंशन आ गया। तो ये जो टेंशन है, वो क्या चीज है ये टेंशन? आप बच्चे तो बोलते हैं मेरे को बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन है। क्या का टेंशन है? क्यों आता है? और आता है, सही बात है। इवन आई आल्सो हैव समटाइम्स टेंशन, आता है, सही बात है। तो फिर क्या करना है इस टेंशन का?
आता तो है, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, तो ये टेंशन तो आता है। तो जब ऐसे टेंशन आता है तो हम क्या करते हैं, घबरा जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, मेरे एक दो पहचान के बच्चे हैं, उन्होंने ऐसे किया जब बहुत, एक्चुअली दे वर वेरी गुड, मैंने अच्छे 80-90% लाने वाले बच्चे थे वो, लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम थी तो दे जस्ट सेड कि नहीं भाई आज मुझे बहुत बुखार है, मैं उठ भी नहीं सकता, मैं तो पेपर तो मैं लिख ही नहीं सकता। एंड दे जस्ट डिडंट अपीयर फॉर एग्जाम। क्या हुआ? व्हाई? वर दे रियली दैट इल कि भाई पेपर भी नहीं लिख सकते, इतने बीमार थे? हाँ, कभी बहुत बहुत रेयरली ऐसे हो सकता है, यस। लेकिन बहुत सारी बात क्या होता है कि वी जस्ट रन अवे, हम वहां से निकल जाना चाहते हैं कि भाई एग्जाम भी नहीं, वो लिखना भी नहीं, और उसके बाद में मार्क्स कम ज्यादा वो भी प्रॉब्लम ही नहीं, पेपर ही मत दो। हाँ, तो ये टेंशन से क्या हो गया, जिसके लिए आपने इतनी सारी तैयारी की थी, इतनी पढ़ाई की थी, इतने ट्यूशन क्लासेस लगाए थे, इतने दिन में 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई की, उसका एग्जाम पेपर तो आपने दिया ही नहीं, तो फिर क्या फायदा, क्या मिला? क्योंकि आपको ऐसे लग रहा था कि अगर मुझे इतने 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 मार्क्स अगर नहीं मिल रहे, या मिलेंगे नहीं, या नहीं मिल सकते, तो लोग क्या कहेंगे, और इसका मतलब मैं कितना डफर हूं, मैं क्या नहीं कर सकता, इसके बारे में एक तो लोग तो बोलेंगे ही, और मुझे भी बार बार ये मन में आएगा कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ये हुआ नहीं, तो इसलिए अच्छा है इससे कि मैं पेपर ही मत दूं, जस्ट रन अवे। मुझे बताइए, क्या ये सही था? क्या ये करना सही है? जस्ट रनिंग अवे, गोइंग अवे फ्रॉम योर वर्क, फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड फिर से आ गया, क्योंकि बड़ा होना और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों वर्ड्स एक साथ पैरेलल जाते हैं। तो अपने परफॉर्मेंस की, मेरी पढ़ाई की, मेरी पेपर, मेरे एग्जाम की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको फेस करना, सबसे मेरा जो जितना मेरे से अच्छा बन सकता है, whatever 100% that I have, मैं अगर दे सकता हूं तो वो कोशिश करना। This is facing the problem. This is your performance in exam. उससे दूर भागना, ये कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं ना, ये तो उत्तर है ही नहीं। तो बहुत सारी बार ये जब हम टेंशन जब भी आता है, तो ये हमारी थिंकिंग, ऐसे विचार अपने रहते हैं कि इससे दूर भागे तो अपना प्रॉब्लम खत्म। मुझे सच में बताइए, ऐसा दूर भागने से ये प्रॉब्लम खत्म हो गया? खत्म होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो एक्सेप्टिंग, मैं कैसा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरी लेवल क्या है, मैं कितना एफर्ट्स उसमें कर सकता हूं, कर सकती हूँ। मुझे जो हमने ये अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीकनेस का अभी विचार किया था ना, वो पढ़ाई में एग्जाम देते समय भी वो सोच जरूरी है कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, मेरे वीकनेसेस कौन से है, आई हैव टू वर्क ऑन इट एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द एग्जाम। वो जब मैं खुद को तैयार करूंगी तो मेरी ये जो घबराहट है, मेरा ये जो टेंशन है, वो कम करने में मदद होगी कि नहीं? जरूर होगी, क्योंकि मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मैंने समझ लिए, मेरे वीकनेसेस मैंने समझ लिए, उस पर मैंने काम कर लिया, तो मेरा टेंशन कम होने के लिए उसका
फायदा होगा। टेंशन और एक बात का आता है कि बहुत सारी टाइम हम एक्चुअल मुझे कितना परसेंटेज चाहिए, ये एक कोई नंबर रहता है, माने 94% है या 87% है या 99% है, जो भी है 100% भी है, हम कोई एक नंबर पर अटक जाते हैं। हम अपने दिमाग में एक नंबर फिट कर लेते हैं कि भाई ये नंबर, ये परसेंटेज मुझे होना, और वो नंबर अपने दिमाग में इतना फिट हो जाता है कि उसके सिवा दूसरा अपने को कुछ सोचता ही भाई 98 से नीचे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे हम खुद को ही बताते रहते। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो 98 तक जाने का जो टाइम है, जो प्रोसेस है, दैट वी डोंट एंजॉय। मैं आपको एक बात बताती हूँ। हाँ, मेरे पहचान के है ना, एक बहुत अच्छे फ्रेंड है मेरे, तो अपने यहाँ वो जो बगीचा है मालटेकड़ी पर, तो भाई बहुत अच्छा बगीचा मालटेकड़ी पर बनाया है। वहाँ शिवाजी का बड़ा वाला स्टैचू है, हॉर्स पर बैठा हुआ। तो हमारे पहचान के जो एक मेरे फ्रेंड है ना, तो वो इतनी जोर जोर से वेरी फास्ट ऐसे नीचे मुंडी डाल के वो मालटेकड़ी के ऊपर के स्टैचू पर चले जाते हैं। वो मालटेकड़ी के स्टैचू पर जाने के बाद वो शिवाजी महाराज के स्टैचू को एक हाथ लगाते हैं, उसको गोल घूमते हैं और फिर धप 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 करके नीचे आ जाते हैं। तो मैं भी एक दिन मालटेकड़ी पर जा रही थी, मुझे नीचे आते समय उनसे मुलाकात हो गई। तो मैंने पूछा, भाई कैसा है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ घूमने में। तो बोले, क्या इसमें क्या अच्छा लगने वाला क्या है? तो बोले, क्यों नहीं, अभी यहाँ इतना ये कॉर्पोरेशन ने अच्छा रास्ता बनाया है, अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगाए हैं, वहाँ बैठने के लिए अच्छे बेंचेस बनाए हैं, ऊपर जाके कुछ फ्रेम्स प्रदर्शनी जैसे किया है, बहुत अच्छा है। तो बोले, छे मैं तो कुछ देखता नहीं, मैं सिर्फ ऐसे नीचे मुंडी डाल के ऊपर जाता हूँ, शिवाजी महाराज के स्टैचू को हाथ लगाता हूँ और फिर से नीचे आ जाता हूँ। और मैं बोली, नहीं, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, धीरे आराम से जाती जा रही, मैं ऊपर देखती हूँ क्या है, कैसे लोग वो मिल रहे मुझे, उनसे बातें करते करते मैं ऊपर जा रही हूँ। हाँ, मैं ऊपर गई, स्टैचू देखा, स्टैचू बहुत अच्छा था, मस्त लगा शिवाजी महाराज का स्टैचू देख के। वहां मैं 2 मिनट बैठी और फिर नीचे आ गई। तो ये मेरा मालटेकड़ी पर जाना और इस व्यक्ति का मालटेकड़ी पर जाना, इसमें फर्क है ना? क्या फर्क था? दैट पर्सन, he was just not interested in anything. उनको सिर्फ वो मालटेकड़ी के ऊपर के स्टैचू को एक बार ऐसे हाथ लगाना था और झट से नीचे आना था, बस। और मैंने क्या किया, वो नीचे से ऊपर तक मेरा जो वॉक था along the road, that I enjoyed, मजा आया मुझे जाने में, लोगों को मिलने में, आजू बाजू देखने में। और मैं वहां जाके रुकी, स्टैचू देखा अच्छे से, I enjoyed। तो ये हमारा दोनों का जो प्रोसेस था ऊपर जाने का, इसमें कुछ फर्क है कि नहीं? मैं ये स्टोरी आपको मैंने क्यों बताई? देखो, आपके दिमाग में आपने 98% ये शिवाजी का स्टैचू फिक्स कर लिया, लेकिन मैं वो 98% के लिए मैं जो भी कर रही हूँ, did I enjoy that? वो करने में मुझे मजा आया क्या? Was I willing? Was I motivated to do that? या आप मेरे दिमाग में सिर्फ शिवाजी महाराज का स्टैचू 98%, बस इतनी बात थी? मेरा कहने का मतलब है, आप में से जो छोटे बच्चे हैं शायद उनको समझ में नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो भी काम करते हो,
उसको एक टारगेट तो बनाना ही है। कोई भी काम करने में टारगेट जरूरी है, लेकिन टारगेट पहुंचने तक का अपना जो काम है, उसके लिए जो भी हम काम करते हैं, वो जो रास्ता हम लेते हैं, वो जो प्रोसेस है, वो भी आपको हर स्टेप पर एंजॉय करना चाहिए, दिल लगा के करना चाहिए, मन से करना चाहिए। कैसा भी करके एक बार कर दिया, फेंक दिया, बकेट करके रख दिया, ऐसा अपनी अगर मन में भावना है, then we don't enjoy it। और जो चीज हम एंजॉय नहीं करते, जो मन से दिल से नहीं करते, वो बात बताइए, वो अच्छी होती है क्या? हाँ, जैसे आपके मम्मी ने आपको बोला कि भाई गार्डन साफ करो, अपने यहाँ घर पर मेहमान आने वाले हैं, थोड़ा गार्डन आप अच्छे से सब क्लीन कर दो, तो आप क्या सोचते हैं कि भाई जाने दो, ये फालतू मेहमान आते हैं, मेरे पर काम पड़ता है, कैसा करके इधर उधर करके मैंने गार्डन ऐसा ऊपर ऊपर साफ कर दिया। या मन लगा के सही तरीके से साफ किया और अच्छा लगा, खुद को भी अच्छा लगा और आने वाले गेस्ट को भी अच्छा लगा। ये दोनों में फर्क है। जो काम अपन अपने मन से नहीं करते ना, उसका टेंशन आता है। ये टेंशन कहाँ से अपनी बातचीत शुरू हो गई? एग्जाम के टेंशन से, राइट? तो ये जब टेंशन लेना और बहुत अपने को चिंता लगना कि भाई मेरा क्या होगा, परफॉर्मेंस कैसे होगा, कितने मार्क्स मिलेंगे, नहीं मिले तो क्या होगा, मम्मी क्या कहेंगी, सर क्या बोलेंगे, तो ये हम मार्क्स किसके लिए ला रहे? सर के लिए नहीं ला रहे, मम्मी डैडी के लिए नहीं ला रहे, हम अपने खुद के लिए मार्क्स ला रहे। और अगर वो हम एंजॉय करके मार्क्स ला रहे हैं, वो पूरी अच्छे से समझ के उसके लिए एफर्ट्स लेके मन से दिल से काम करके मार्क्स ला रहे हैं, तो देन यू एंजॉय इट। वो आपको जोर जबरदस्ती पनिशमेंट नहीं लगती है। और अगर वो जोर जबरदस्ती पनिशमेंट नहीं है, तो इसका मतलब उसका टेंशन भी नहीं है। टेंशन उस बात का रहता है जिसमें आपको बहुत सारी बार किसी के जबरदस्ती से या खुद के जबरदस्ती अपन कुछ चीज करना चाहते हैं ना, तब उसका टेंशन आता है। जो आप दिल से मन से कर रहे हो, उसका टेंशन नहीं आता है। तो पढ़ाई करने में भी आप जो भी पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ो, मजे से पढ़ो, छोटा छोटा टुकड़े करके पढ़ो। मैं कुछ दिन पहले मैंने सचिन तेंदुलकर की एक टीवी पर उसकी इंटरव्यू चल रहा था, वो मैंने देखा। तो सचिन तेंदुलकर ने, आपको सबको मालूम है, 100 सेंचुरीज बनाई, 100 बनाए, मालूम है सबको? मालूम है 100 सेंचुरीज सचिन तेंदुलकर ने की है। तो उसको जब इंटरव्यू में पूछा गया कि भैया आपने ये कैसे बनाया 100 सेंचुरीज, तो वो कह रहा था कि ऐसे कोई, वो जब 16 साल का था और जब पहली बार क्रिकेट के क्रीज पर उतरा, तो पहला ही बॉल, बैट बॉल खेलने से एकदम उसकी सेंचुरी तो नहीं बनी, एक एक रन जोड़ के उसकी सेंचुरी हुई, बराबर। तो उसने, सचिन तेंदुलकर ने ऐसे कहा कि मैं जब भी क्रीज पर रहता हूं, तो जो भी सामने वाला बॉलर बॉलिंग कर रहा है, मैं बस उस बॉल के बारे में सोचता हूँ। अभी मेरे सामने जो बॉलर है, वो जो बॉलिंग कर रहा है, उसके हाथ में जो बॉल है, वो कैसे स्पिन हो रहा है, क्या स्पीड से आ रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या है, बस मैं वो बॉल के बारे में सोचता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि मैं अभी ओपनिंग के लिए आया हूँ और ये मेरा फर्स्ट बॉल है, नहीं, मैं ये नहीं सोचता। मैं ये भी नहीं सोचता कि मैं अभी 97 पर हूँ
और 3 रन्स बनने के बाद मेरी सेंचुरी हो जाएगी, ये भी मैं नहीं सोचता। मैं क्या सोचता हूँ, मैं बस वो एक बॉल के बारे में सोचता हूँ जो अब भी मेरे सामने आ रहा है। सी कितना इम्पोर्टेंट मैसेज सचिन तेंदुलकर ने दिया है कि मैं अब भी इसी वक्त जो काम कर रहा हूँ, जो चैप्टर पढ़ रहा हूँ, जो विषय का जो पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, वो मुझे समझ में आया कि नहीं आया, वो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इसमें कोई डिफिकल्टी है कि नहीं है, ये क्वेश्चन आंसर मैं दे सकता कि नहीं दे सकता, बस उसके बारे में सोचो। इस प्रकार से आप जब स्टडी करते जाएंगे तो आपको टेंशन नहीं आएगा। सचिन तेंदुलकर 100 सेंचुरीज इसलिए कर पाया क्योंकि वो हर बॉल स्टडी करके उस समय नाउ एंड हियर अब भी इसी वक्त मुझे जो करना है वो मैं बेस्ट करूंगा, सबसे अच्छा करूंगा। मेरी जो भी कैपेसिटी है, क्षमता है, एबिलिटी है, वो मैं मन लगा के बेस्ट, वो जो बॉल आ रहा है उसको मैं ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से बैटिंग करके दिखाऊंगा। ये जो सोच है ना कि मैं अभी इसी वक्त जो भी काम कर रहा हूँ, that I will try to be perfect in that. I will try to be excel in it. उसमें मैं excellence अपना दिखाऊंगा। You try to think of Sachin Tendulkar whenever you are studying. That will help you. और इसका मतलब आप इम्प्रूव हो जाएंगे, आप अपना परफॉर्मेंस और अच्छा कर पाएंगे। कुछ प्रॉब्लम है? बैटरी थोड़ी लो थी तो मैं सिर्फ वो एडजस्ट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। Yeah, I think we are good. Okay. Yes. Okay, should we go ahead? Have any questions about this? Anything more? If you have any questions and if you don't want to turn on your mic and ask, so you can type it also. We can read the chats from here and I can relay it to Mona aunty. Okay, I think we can go ahead. Okay. No more question. No questions on this. We can go ahead. Yes. Okay, right. So I think we have another 20-25 minutes, and I will be considering 2 more points, and then I think. And actually, I would like to have an interactive session. I would love to have questions from children, but anyway, it doesn't matter if they are not able to give proper interact properly. I will go on the next point which I always like to share, and that is, it is about your doing things about your family. ये जो अपना घर रहता है ना, अपनी फैमिली जो रहती है ना, उसके बारे में हम
कितना single से जानते हैं तो हमारी उसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, कितनी होनी चाहिए। तो ये मैं बहुत सारी बार बच्चों से स्कूल्स में बात करती हूँ। बच्चे सब चले गए। I really feel कि अभी 9 से 14 ये जो आपका एज है, वो तो स्कूल में जाना, पढ़ना, एग्जाम देना, पेपर लिखना, ट्यूशंस करना वगैरह वगैरह हो गया, वो तो सब ठीक है। लेकिन जिस घर में आप रहते हो, ये 4 दीवार जो घर में आप रहते हो, उस घर के लिए आप क्या करते हो? I would like to make all the children aware of this point. क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि हम कभी छोटे हैं, what can I do? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे से क्या होगा? मैं क्यों करूँ? मैं तो अभी छोटी हूँ। नहीं, आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपका जो हिस्सा है, उसमें आप जरूर कुछ ना कुछ कर सकते हो और करना भी चाहिए। Because you are part of this home. हाँ, ये घर का आप हिस्सा है। तो ये घर जो बनता है और घर में आपको जो जो मिलता है, उसके इन रिटर्न या उसकी आपकी कंट्रीब्यूशन कुछ ना कुछ होनी चाहिए ना। आप खुद सोचिए कि हाउसहोल्ड में, घर में 24 घंटे जो भी काम रहता है, शायद आपकी मम्मी, डैडी, दादी, नानी, काम वाली भाई, बहन, चाचा, चाची, जो भी घर में और जो मेंबर्स हैं, उसकी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन ये घर में है, राइट? Then you have to start thinking कि मैं ये घर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। मैंने अब जब भी ये क्वेश्चन में बच्चों को पूछती हूँ तो दे आर रियली ब्लैंक। उन्हें बहुत सोचना पड़ता है उनको, और फिर बताना शुरू करते हैं मैं क्या करता हूँ घर के लिए। तो कैन वी नॉट डू वन थिंग? The voice is not very clear, no? कि घर में जो काम है उसमें से चार पूरे 24 घंटे में 4 काम कैन यू चूज कि ये मेरा काम हो, ये घर में मेरी कंट्रीब्यूशन है। इट मे बी अ वेरी सिंपल वर्क। जैसे अभी घर में न्यूज़पेपर आते हैं, बहुत सारे समय इधर उधर पड़े रहते हैं, तो मैं रोज का न्यूज़पेपर आफ्टर द एंड ऑफ द डे मैं घड़ी करके एक जगह रख दूंगा। भाई कितना छोटा काम है, बिल्कुल छोटा काम है, लेकिन ये आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके देखो, हम फिर से बार बार रिस्पॉन्सिबिलिटी ये वर्ड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा होना हमें रिस्पॉन्सिबल होना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना। तो मैं ये घर के कम से कम 4 काम रोजाना ऐसे है क्या कि जो मैं मेरा काम समझ के करूंगी। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि एक न्यूज़पेपर रोज का आफ्टर द एंड ऑफ द डे सही जगह पर फोल्ड करके रख देना, या कोई सूखे कपड़े निकाल के फोल्ड करके जिसके कपड़े हैं उसके अच्छा लगा देना। कैन यू डू दैट? अच्छा, जब मैं दूध, कॉफी, बोर्नविटा, चाय, मिल्क शेक जो भी पीती हूँ, और कम से कम कप मेरा मग मैं धो के रख दूंगी। Can I do that? कोई भी काम, anything, आप, it is your choice. ये घर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? देखो, ऐसी कुछ बातें ऐसी है जो आपके खुद की बातें हैं, वो खुद के लिए करनी है, वो तो बहुत सारे करते हैं, लेकिन
start doing it. ये काम इसलिए करना है because it is your contribution to this household. It is your job to give your efforts in making this home satisfactory और सबको ये सुखी हो, convenient हो, उसकी needs, तरस जो पूरी करना है, इसमें मेरा contribution क्या है, ये सबने सोचना चाहिए. So don't ever consider कि मैं छोटा हूँ, मैं छोटी हूँ और मैं नहीं कर सकती. No, ऐसा नहीं है. बहुत ही छोटे काम है जो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो. नहीं कर सकते तो सीख लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है वो दूर करो और काम करना शुरू करो. This household, ये घर में जो लोग रहते हैं, घर जो अपने को इतना सिक्योरिटी देती है, शांति देती है, समाधान देता है, एश्योरेंस देता है, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, इसकी फीलिंग आपके पास जरूर होनी चाहिए. नंबर 2, आप 9 साल के भी है या सबसे छोटा बच्चा भी है, तो उसको भी अपने हाथ से कम 2 या 3 चीजें खाने की बनानी चाहिए. अपने हाथ से कुछ भी बनाओ. आप ब्रेड का सैंडविच अपने हाथ से बना सकते हो. आप घर में अगर पोहा है तो कम से कम दूध पोहा खा सकते हो. आप एक थाली छोटी मोटी डिश बना के, चिवड़ा है तो प्लेट में लेके अपने हाथ से खा सकते हो. See, मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि आप जब भी बड़े हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट होना, इसके लिए ये अभी से जानकारी लेना, ये काम में रुचि लेना, रुचि के साथ साथ इसकी जानकारी लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है. आप जब बड़े हो जाएंगे तब आपको अगर खाना बनाना पड़े और आपको सूजी, मैदा और गेहूं का आटा, इसमें से फर्क भी अगर मालूम नहीं है, आप 20 साल के हो गए. हेलो, सूजी कैसे बनती है, आटा कैसे बनता है और मैदा कैसे बनता है? ये तीनों गेहूं के से ही बनते हैं. लेकिन कैन यू आइडेंटिफाई, आपको रवा कैसा है मालूम है, सूजी कैसी है मालूम है? आपने कभी देखी है? आपने आटा देखा है? आपने मैदा देखा है? देखो, आप बहुत सारे घर पर स्प्राउट्स कभी न कभी बनाते होंगे आपकी मम्मी. अलग अलग किस्म के स्प्राउट्स, कैन यू आइडेंटिफाई? दाल रहती है अलग अलग किस्म की, कैन यू आइडेंटिफाई? मार्केट में जाकर आपका बोला अगर मेथी लाना है, सांभर या पालक, शायद आप नहीं ढूंढ पाओगे कि सांभर किसे कहते हैं, पालक किसे कहते हैं. कैन यू डू दैट? देखो, हम सबको ऐसा लगता है कि इसमें कोई जरूरत नहीं है समझने की, ये इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, ये तो मेरा काम ही नहीं है, क्योंकि ये काम करने के लिए दूसरा कोई है. ऐसा नहीं है. आपको मालूम है, कभी आप डैडी के साथ, मम्मी के साथ किसी बैंक में जाते हो, किसी ऑफिस में जाते हो, स्टेशन पर जाते हो, एयरपोर्ट पर जाते हो, तो वहां का काम कैसे चलता है समझ लेना चाहिए. These are social skills. जिस समाज में हम रहते हैं, जो घर भी एक समाज का हिस्सा है, isn't it? बहुत सारे घर है, उसका समाज बनता है ना? तो ये सोसाइटी का एक अपना घर एक हिस्सा है. तो घर में जो चीजें होती है उसके बारे में हमको अवेयरनेस, मालूमात होनी चाहिए. So you have to be very aware as far as your domestic, social
क्योंकि आगे चल के अगर आपको इंडिपेंडेंट होना है, अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है, उनका लड़का अमेरिका में गया और वहां जाते समय साथ में उसने 2-4 यूटेंसिल्स, भांडे और एक छोटा सा कुकर लेके वो गया। उतना सब उसका इतना सारा एडमायर कर रहे थे सब लोग उसको कि भाई बाहर देखो और अमेरिका में जाके अभी दाल चावल पका रहा है, रोटी बना रहा है। मेरी समझ में नहीं आया इतना सारा उसको अप्रिशिएट करना, कौतुक करने की क्या जरूरत है? अपना खुद का दाल रोटी चावल बनाना आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? कम से कम एक अंडा ऑमलेट ब्रेड अपना पेट भरने के लिए करना चाहिए या नहीं चाहिए? So if you want to be an independent individual, a responsible individual, taking self-care, तो ये जो अपने आजू बाजू में होने वाली बातें हैं उसके बारे में पता चलना चाहिए या नहीं चाहिए? पोस्ट ऑफिस में क्या काम होता है, बैंक में कैसा काम करते हैं, रेलवे का रिजर्वेशन कैसे मिलता है, म्यूनिसिपैलिटी क्या काम करती है, इसके बारे में मालूमात होना जरूरी है कि नहीं? तो ये सब्जेक्ट जो हमारे समय सिविक साइंस बोलते थे, नागरिक शास्त्र बोलते थे, वो हमको बहुत बेहतर सब्जेक्ट लगता है। नहीं, that helps you to make you a good person. अच्छा व्यक्ति बनना, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए ये सिविक्स का जो सब्जेक्ट है ना, नागरिक शास्त्र, being a good citizen, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जब जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, उसमें एक कुछ न कुछ डिसिप्लिन जरूरी रहता है। और ये मेरे ख्याल से 5 मिनट में मैं बोलूंगी और देन आई थिंक दिस वर्कशॉप विल बी ओवर। हमको ऐसे बहुत सारे टाइम ऐसे लगता है कि ये डिसिप्लिन जो है ना, कोई रूल्स रेगुलेशंस जो भी रहते हैं, ये बहुत बोरिंग है। आई डोंट लाइक इट, नोबडी लाइक्स इट। ऐसा है कि ये डिसिप्लिन मानना, रूल्स ओबे करना, ये माने जैसे बोलो खटखट है, बोरिंग है। और हमको ऐसे लगता है कि ये जो डिसिप्लिन और रूल्स जो है, ये मैं क्यों नहीं मानता, मुझे क्यों नहीं अच्छे लगते? एक तो बात है कि इससे मुझे तकलीफ होती है, ये बहुत बेकार है, ये इससे मुझे डिस्टर्ब होता है। सही में आप सोचिए, अगर अपनी पूरी लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में, घर में, सोसाइटी में अगर कोई डिसिप्लिन ही नहीं हो तो अपना लाइफ कैसे रहेगा? अच्छा रहेगा? कोई भी डिसिप्लिन ही नहीं है ना, अच्छा नहीं रहेगा। तो इसका मतलब है डिसिप्लिन अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कभी कभी सेल्फ डिसिप्लिन रहता है, अपने खुद के लिए डिसिप्लिन रहता है। जैसे कि अभी सुबह उठे तो मैं सबसे पहले दांत ब्रश करती हूँ। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? सुबह उठने के बाद पहली बार दांत ब्रश करना, व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिंपल डिसिप्लिन। ये मेरा खुद का डिसिप्लिन है, वो जरूरी है ना, आवश्यक है, मेरी हेल्थ के लिए आवश्यक है, मैं जिनसे बात कर रही हूँ उनके लिए आवश्यक है, मेरे अच्छे पर्सनालिटी के लिए आवश्यक है। तो ये मेरा खुद का डिसिप्लिन है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये मैं केवल मुझे अच्छा लगे इसलिए नहीं कर रही हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो बाकी लोगों के लिए करना भी जरूरी रहता है। अगर आप कहीं वन वे ऐसे लिखा है, एक ही दिशा से जाना है, ट्रैफिक एक ही साइड से जाएगा, अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब कि उसी दिशा से ट्रैफिक जाना चाहिए। अगर कोई उल्टे साइड से आता है तो आपको अच्छा लगता है?
सोशल बाइंडिंग है, क्योंकि हम इस सोसाइटी में रहते हैं। तो ये सोशल डिसिप्लिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पैसा कमा रही हूँ और मैं टैक्स नहीं भर रही, तो इसका मतलब मैं ये सोशल डिसिप्लिन मान नहीं रही। आई एम गोइंग अगेंस्ट द रूल्स, अगेंस्ट द डिसिप्लिन। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन रहता है, सोशल डिसिप्लिन रहता है, अपना ये स्पिरिचुअल डिसिप्लिन भी रहता है। तो डोंट एवर थिंक कि डिसिप्लिन माने जोर जबरदस्ती बेकार तकलीफ वाला बोरिंग। ऐसे रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन के लिए अगर वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ना खुद के लिए तकलीफ हो जाती है, दूसरों को भी उसकी तकलीफ होती है। सो बी वेरी केयरफुल कि अपने खुद के डिसिप्लिन क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया फिजिकल डिसिप्लिन है कि भाई खुद के क्लीनलीनेस हाइजीन रखना, प्रॉपर डाइट लेना, खाना अच्छे से लेना, या एक्सरसाइज करना, या आपका जो काम है, जो भी किसी का काम हो, आपका काम अभी स्टडी है, आपके डैडी का काम करना है, मम्मी का वही और कहीं काम करती होगी, तो अपना अपना काम करना ये अपना खुद का फिजिकल डिसिप्लिन है। एक दूसरा और एक डिसिप्लिन है कि हमारी जो एक्सप्रेशन है, हमको बहुत आनंद हुआ है, हमको बहुत दुख हुआ है, वो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ये भी अपना खुद का डिसिप्लिन है। अपनी धार्मिक जब प्रवचन ये वो होता है, सत्संग वगैरह होती है, उसमें क्या बताते हैं, ये तो बताते हैं। तो ये अपना धार्मिक स्पिरिचुअल भी डिसिप्लिन हो जाता है। जैसे मैंने कहा सोशल डिसिप्लिन है, आप किसी मंदिर में जाते हो तो चप्पल बूट निकाल के अंदर जाते हो, सही बात है। किसी भी मंदिर में आप कहीं भी चले जाओ, मंदिर में जाने से पहले चप्पल बूट निकालते ना, तो ये क्या हुआ, ये डिसिप्लिन हुआ। तो ऐसे बहुत सारे डिसिप्लिन जो है, जो अपने खुद के लिए, अपने आजू बाजू के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, समाज का असर बाद में अपनी नेशन पर होता है, पूरा ग्लोबल उसका असर होता है। तो ऐसे मत समझना कि डिसिप्लिन ये केवल इंडिविजुअल आपको बहुत तकलीफ देने के लिए किसी ने रूल्स बनाए हैं, और दैट इज व्हाई दे आर गोइंग। और एक दोस्त, आप सब बच्चे हैं इसलिए मैं बता दूं, बहुत मजा आता है जब हम कोई रूल तोड़ते हैं। हाँ, बहुत मजा आता है। हाँ, अगर कोई वहां बोर्ड लिखा है कि स्पीड लिमिट 40, हाँ, तो वहां जहाँ स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखा है, वहां से जोर से गाड़ी चलाना, और वाह क्या मजा आया। जहाँ लिखा है साइलेंस, हॉर्न मत बजाइए, वहां से करके हॉर्न बजा के जाना, अरे वाह वाह क्या मजा आया। डिसिप्लिन तोड़ा, कितना मजा आया। ये अपनी मानसिकता रहती है ऐसे कि डिसिप्लिन तोड़ना माने मजा। आपको स्कूल में जब बताते हैं कि एक लाइन में चलो, कतार में चलो, तो जब भी आपको कतार छोड़ के इधर उधर भागते हैं तो आपको बहुत मजा आता है, क्योंकि आपके लिए तो कतार में चलना, लाइन में चलना, ये बहुत ही बेकार बोरिंग चीज है। तो ये सबसे पहले ये मेंटालिटी अपने दिमाग से निकालना है कि ये रूल तोड़ना माने मजा। जब आप ये मेंटालिटी से बाहर आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा डिसिप्लिन का मजा क्या है, डिसिप्लिन के फायदे क्या है। और आज के इस पूरे वर्कशॉप में मैंने तो बहुत एंजॉय किया आपसे बातें करना, एंड आई एक्सपेक्ट कि शायद आपको भी कुछ न कुछ इस वर्कशॉप से मिला होगा।
मैंने आपके साथ जो भी बातें की वो सबसे पहले की अपने स्टडीज के बारे में, फिर मैंने आपसे बात की अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीकनेसेस के बारे में, फिर आपसे मैंने बात की कंपैरिजन कैसे करना उसके बारे में, फिर मैंने आपको बताया कि टेंशन या स्ट्रेस आता है उसको कैसे हैंडल करना, उसके बारे में कैसे सोचना, ये मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि आपके हाउस होल्ड घर में एज एन इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट होना, लाइफ स्किल्स अपने आजू बाजू के लाइफ को समझना, ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये मैंने बात की। और अभी लास्ट मैंने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन का क्या महत्व है इसके बारे में मैंने बात की। मुझे मालूम है 1 घंटे में इतनी सारी बातें आपके दिमाग में ठूसना इज नॉट पॉसिबल एंड इट विल टेक टाइम, लेकिन कम से कम ऐसे कोई अलग अलग सब्जेक्ट्स है जो अपनी सेल्फ केयर के बारे में सीखने में मायने रखते हैं, इम्पोर्टेंट है, दे आर रेलेवेंट। ये जब आपको समझ में भी आया तो भी आज का ये वर्कशॉप अच्छा हो गया, ऐसे मैं समझती हूँ। उसके बारे में डिटेल्स जो है उसके बारे में एक्चुअल करना, एक्सपेरिमेंट करना, उससे कुछ सीखना, उसमें क्या अपने को समझा नहीं समझा, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये बाद में हमको पता चल जाएगा। लेकिन आज कम से कम मैंने कुछ और विषय पर सोचना क्या क्या जरूरी है, इतना भी अगर मैं आपको कुछ दे सकी तो आई थिंक दैट वाज गुड इनफ एंड आई एंजॉयड इट और आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू हार्दिक। Thank you, Auntie. This is a lot to think about. I'm sure there will be a lot of change, or at least a little bit, lot of thinking involved after this. Okay. So Okay, right. we'll wait for a I minute. would like to know the feedback from children also. Yeah, sure. Are So they better? we'll send out a feedback form after this, and we'll get a response from them. Oh yes, good. Thank you. Thank you. Right. It was a very nice, interactive, very informative session, Mona Tai. Very nice and informative session, Mona Tai. Very nice and informative session. Okay. Okay. All right. So thank you very much. Okay. Bye. Bye. I'll leave now. I hope the children are able to make the best out of it. Thank you. Good day. Thank you. Good day. Good day. Yes, yes. हो गया कट मैं वो आप होने को